Hello everyone, this is Ashutosh here and I am back with another interesting set of questions. History के questions हैं. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. What you see is a beautiful painting and a painting of Chinsura. This is a place and the painting is by William Hodges. I am going to ask a question related to this place Chinsura itself, but it's a painting from 1787. There was a battle which was fought between East India Company and Dutch forces, Dutch East India Company at Chinsura. It is called as Battle of Chinsura, या Battle of Bindera or the Battle of Hooghly, and it took place on 25th November 1759. It was then a Dutch outpost and it lasted for 7 years, 7 years war. It took place between a force of British troops, mainly of the British East India Company, and a force of the Dutch East India Company, which had been invited by the Nawab of Bengal, Mir Zafar ने बुलाया था to help him expel the British and establish themselves as the leading commercial company in Bengal. ये बैटल काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक तरीके से स्टैब्लिश भी करने में इसने हेल्प की थी. मीर जाफर ने बुलाया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को और बैटल ऑफ चिंसुरा हुआ था. नाउ द क्वेश्चन इज in 1759 this battle is also called Bidera, battle of Bidera or battle of Chinsura or battle of Hooghly also. So the question is, in 1759 the war of Bidera took place between Dutch Company and East India Company. Where is this place located at present? ये जगह कहाँ पे है? चिंसुरा कहाँ पे है? गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. अगर आपने पिछला एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से सुना होगा और या पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे देंगे. गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. अभी जो जगह है वो ऐसी दिखती है. वहां पे जो डच सिमेंट्री है उसकी ये फोटोग्राफ है. और दोस्तों इसका आंसर है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में हुगली के पास ये जगह है, कैलकाटा के पास. In which battle is the first description of the use of artillery by the Mughal Emperor Babur found in medieval Indian history? Medieval Indian history में पहले बैटल, वो बैटल कौन सी है जिसमें पहली बार डिस्क्रिप्शन है आर्टिलरी का? आर्टिलरी मतलब तोपों वगैरह का यूज है, तोप, गन पाउडर, इस तरीके के आर्टिलरी का यूज किया गया था बाबर द्वारा. In which battle is the first description of the use of artillery by Mughal Emperor Babur found in medieval Indian history? First battle of Panipat, battle of Khanwa, attack on Chanderi या battle of Ghagra? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट बाबर द्वारा तोप खाने के प्रयोग का सर्वप्रथम वर्णन किस युद्ध में मिलता है? मुझे नहीं पता है कि ये फोटोग्राफ वहां की है, बट मैंने इंटरनेट से उठाने की कोशिश की है. पहले के समय में आर्टिलरी का यूसेज कुछ इस तरीके से था, बाद में इवॉल्व होते गए, कुछ ये भी प्रारूप था. ये उस वॉर की बात नहीं है, ये बाबर के समय वाली फोटोग्राफ नहीं है. और इसका आंसर है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत laid the foundation of the Mughal Empire in India. This was one of the first battles in which the Mughals used gunpowder, firearms, and cannons. The first battle of Panipat was fought between Zahiruddin Babur, पूरा नाम Zahiruddin Babur, and Sultan Ibrahim Lodhi of the Lodhi dynasty of Delhi. ये फोटोग्राफ मैंने इंटरनेट से उठाई है. तब ये जो पिक्चर है, ये जो पोर्शन है, ये दिखा रहा है कि लोधी डायनेस्टी कहाँ तक एक्सपैंड करती थी. We move to the next question. Which British governor was the first to draft the Widow Remarriage Act 1856 passed by Charles Canning? किस ब्रिटिश गवर्नर ने was the first to draft, उसने लिखा था the Widow Remarriage Act 1856 which was passed by Charles Canning? Lord Wavell, Mountbatten, Dalhousie, Linlithgow. Lord Wavell, Lord Mountbatten, Lord Dalhousie, Lord Linlithgow. Mountbatten, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश वाले समय के.
तो आपका एक ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया कि मैंने ही आपको बता दिया, क्योंकि ये 1856 की बात है। अब बताइए क्या है, 1856 की बात है। इमेजिन करिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास कौन थे, वहां से कुछ गेस करने की कोशिश करिए। इसमें एक तो चार्ल्स कैनिंग है और दूसरे वो गवर्नर हैं। अब आपको गेस करना है और कमेंट सेक्शन में राइट भी करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सेम फोटोग्राफ के साथ मैंने पास्ट में भी क्वेश्चंस पूछे हैं। और इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो दिस इज द राइट आंसर। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ऑन 16 जुलाई 1856। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे, और आज का थॉट काफी इंटरेस्टिंग है। लाओजू का स्टेटमेंट है, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे बड़ा छोटा, आपके जितने भी बड़े एस्पिरेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी उसकी। और वो एक छोटी शुरुआत भी हो सकती है, बड़ी भी शुरुआत हो सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग थॉट है। द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो दोस्तों, आज का क्विज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस pretty quickly. Thank you for watching this. Thank you so much. Thank you.